Good evening, everybody, and welcome to Ahmedabad Management Association once again. A very, very relevant topic, and with the geopolitical disturbances going on, there is an added dimension to such kind of topics, and we have got one of the best speaker in the field of international business. Ms. Ankit has been regularly, and we are happy that coming to Ahmedabad Management Association to talk about a wide spectrum of topics related to international business. By the way, I am Padmin Buch. I am here to coordinate today's event. I am a member of Executive Committee of Ahmedabad Management Association. I was also earlier chairman of International Trade Committee of Gujarat Chamber of Commerce and visiting faculty to AMS International Business Management Program. So, but we are here, of course, to money. Okay. To coordinate this, coordinate in the sense that basically seeing that the program flow goes on. Ankit Bhai is a non-person, so he knows about it. Look, these three countries, EU, UK, and US. In fact, EU is not a country; it's a group of countries. Okay. Mr. Ankit is the right person to talk about it. But let me tell you, EU and UK has come in limelight because of we enter into the trade agreement. With UK, we entered the trade agreement in July 2025. And recently, in January 2026, we entered into the trade deal agreement with European Union. European Union, a group of about 27 countries. After Britain left it, it's 27 countries. The bilateral trade between UK and India was around 50 billion pounds sterling last year, I believe so. He will, of course, give the exact figure. The European Union, we had almost, I believe, 100 billion or maybe less. And the United States, about 200 billion US dollars. But it is expected that with the trade agreement with UK and European Union, it is going to go very fast. Both the trade agreement with my limited, or I can tell that they are excellent. But I don't know whether they are already operational or not, that Ankit Bhai will tell. We entered, officially we entered, Sesika Thei Gaya. But whether they are operational or not, there is a different thing. It's not that there are any problem, but these are big things. We are the national, we are the state union trade agreement. Thai say nothing to Donald Trump sa gyo. Dar por chogari, dar por now balla dar statement done. Kara kaise, with due respect to you, Kara kaise ke Manason and B Magajo. Trump sa measure Sata Magach. So he is a very fertile person. Direct Magat ke baad dode khabar na pade. He is heading the largest, and whether you like it or no, the most capable country in the world. So that is why we have to take care. The point is that international business is something through which the countries are surviving and prospering. We can never ever discount international business. And that applies to India since last several years. Whenever I go with the delegation of Chamber or AMA to other countries, the ambassador or consular general of ours who are sitting there, they are very keen to meet the trade delegation. And they say that government has told us that diplomacy it is the trade and business which are going to be a long-term thing between the country to country. And they dhyan rakhe, when you go there, they take out the notes and follow it up. The international business is the theme through which the countries are surviving and prospering, including India. And fortunately,
I'm not a political one. Fortunately, India has emerged as a very strong player in the international business, and people are taking note of India is in the international business. So that is why he is the right person to talk about this development which is taking place, including USA. Of course, we know him, but it is my great pleasure to introduce him. Mr. Ankit Majmudar, with over 20 years of experience in international business, he has traveled extensively over 20 plus countries spanning Europe, South America, the Middle East, Africa, and Southeast Asia. Specializing in international business consultancy and assisting clients in identifying potential export markets, connecting with foreign buyers, participating in global trade and exhibitions, and managing pre and post shipment logistics. Practically entire gamut of international business, including the operational part of it, not only mere consultancy. As an associate with the Andaman Management Association, they have trained, that is, this company has trained more than 3,500 entrepreneurs and aspiring exporters, equipping them with the knowledge and skills to excel in the global marketplace. I have been fortunate also to be coordinating his one or two other lectures, also set to listen in. So that is why when this was announced, I myself told Unil bhai, I would like to be there. And that is why I'm here. I request Ankit bhai to take over. It is your field now. But before that, I would just like to. I've been part of a for 25 years. So I've been in the house. Gujarat also with us. बच्चे तो गुजराती बहुत तो वहाँ कोई गए. Anyway, I mean, yes. You know the language, all everything else. सबसे कि ये वो कौन I did present the website kama ba other side of Tuan Kullich. Ha. Perfect. Good evening, participants. Thank you, Padmi sir, for the introduction and taking time to come and introduce me and a part of it. So आज हम बात करेंगे तीन चीजों पे. फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हम लोग 25-26 की बात करेंगे. We talk about how India got into the agreement with EU, European Union. There is a cluster of 27 countries. So as he rightly said, it is not one country, it is a cluster of 27 countries. So anything going from India to any of those 27 countries will now have a 0% duties as such on more than 98 to 99% of the products. So पहले 100 प्रोडक्ट जाते थे, उसमें कुछ ड्यूटीज हुआ करती थी, उसमें से अब 99 प्रोडक्ट जाएंगे, it will have 0% duties. So one is with EU, second is with United Kingdom. पहले यूके यूरोपियन यूनियन का पार्ट हुआ करता था. 2021 में उसने एग्जिट ले लिया, इसलिए उसको ब्रेक्सिट बुला करते थे उस वक्त. So another agreement is with the UK and then US is ongoing. एक interim trade deal हुआ है, but not in a full-fledged way because as Padmi sir rightly said that the Trump government and अभी उनका क्या है आगे का पता नहीं. It seems to be very unpredictable. So let us wait for all the key highlights of India US. But हमारे पास काफ़ी चीज़ें हैं कि हम लोग जहाँ पे गौर कर सकते हैं कि बाकी के तीन रीजन के साथ हम क्या कर रहे हैं. So let us start. We talk about in a span of 1 hour. I will speak about the macro picture. I will talk something about geopolitical scenario, what all is happening around the world. I will also talk about what all are the key products, what all are the key regions, what all are the key countries, and in those countries what all are the key products. तो आपके सामने ये हम लोग रखेंगे कि कौन से रीजन में कौन से प्रोडक्ट करोगे, और अगर आपके पास प्रोडक्ट है तो वो प्रोडक्ट को लेके कौन से रीजन कौन से कंट्री में करोगे. सो थिंग्स विल वेरी क्लियर. सो वी टॉक अबाउट डेटा एंड स्टैटिस्टिक्स एंड एन एनालिसिस. वो कहता नहीं कि बेटा गलत हो सकता है, डेटा गलत नहीं हो सकता. So we always talk about when we come to this forum of international business or export imports, we talk in a very organic way rather than advocism. We take this subject in a very systematic and scientific approach through all statistical data. क्योंकि वही एक आधार है, वही एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे most of the companies are able to take decisions.
So when we talk about the global scenario, we say that India's export $850 billion 2025-26 में, जो पिछले साल 825 था, so we are grown by around 5-6%. When we talk about specifically say merchandise export and service, that has increased by 6.15% in the period April 25 to January 26. मतलब लेटेस्ट डेटा की बात कर रहे हैं हम लोग. सो अब ये समझो कि आपको ये लग रहा है कि यार इसमें क्या बड़ी बात है अंकित, है ना, कि 6% से इंक्रीज हुआ. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, थोड़ा रिवर्स में चलता है, गाड़ी को लेके चलते हैं. यूएस ने अगस्त 25 में, सितंबर 25 में 50% ड्यूटीज ला दिया था इंडिया पे, और तब से 50% चल रहा था जनवरी तक. सो इन स्पाइट ऑफ दोस 50%, 25% जो भी उसने जो ड्यूटीज लगाया, उसके बावजूद इंडिया का एक्सपोर्ट यूएस में तो बढ़ा है, लेकिन दुनिया में भी बढ़ा है. So the now, जैसे मैंने बताया कि one is data, another is analysis and third is interpretation. How you interpret this data? कि हमने ना ही सिर्फ यूएस पे डिपेंड होके एक्सपोर्ट्स बढ़ाया, हमने यूएस के अलावा we tried to encash opportunities in various other sectors, in various regions as such. तभी तो एक्सपोर्ट्स बढ़ा होगा, वरना तो एक्सपोर्ट गिर जाता. अगर हम यूएस पे डिपेंड रहते और 50% ला दिया, तो सब उस वक्त तो काफी पैनिक था कि हाय हाय क्या होगा, जीडीपी गिर जाएगा, एक्सपोर्ट गिर जाएगा, फॉरेक्स गिर जाएगा. ये तीनों चीज बढ़ा है in spite of 50%, right? So we have not only maneuvered beautifully in this phase, but we also explored a lot of regions, lot of countries जहां पे हम लोगों ने नया काम शुरू किया है, हमारे एक्सपोर्टर्स ने नया काम शुरू किया है. India has signed and free trade agreements with nations like UK, EU, US, and even Oman से चल रहा था, GCC में अभी कुछ चल रहा है. I will also show you all 19 different types of agreements in forthcoming slides. So you get a picture कि India कौन से country के साथ FTA कर चुका है, कौन से country के साथ बातचीत चल रही है. You will get an overall picture of all 220 countries. So that is the idea of this kind of forums. जब यूएई की बात करते हैं, यूएई के साथ इंडिया का करार हो रहा था 2022 में मई महीने में. अब 3 साल में इंडिया का एक्सपोर्ट हो गया है 50% से ज्यादा, और इंडिया जो यूएई में सर्विस एक्सपोर्ट करता है वो भी डबल हो गया है. इंडिया ऑस्ट्रेलिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था नवंबर 2022 में, उसके बाद 26 तक आप गिनोगे, सो इंडिया से जो ऑस्ट्रेलिया एक्सपोर्ट हुआ है दैट हैज इंक्रीज बाय 3 टाइम्स. दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ एफटीए. जैसे सर ने बताया कि ये ऑनगोइंग पॉलिटिकल सिनेरियो है या जियोपॉलिटिक्स जो भी टर्बुलेंस है, दैट इज फॉर शॉर्ट टर्म बेसिस. एफटीएस आर ऑलवेज लॉन्ग टर्म. वो हम लोग एक साल की बात नहीं करते. व्हेन वी टॉक अबाउट एफटीए वी टॉक अबाउट 10 years, 15 years, 20 years डाउन द लाइन. एक स्ट्रेटेजिक डिसीजंस होते हैं. हम लोग मैनेजमेंट में बोलते हैं ना, देयर आर टैक्टिकल डिसीजंस, देयर आर ऑपरेशनल डिसीजंस, एंड देन देयर आर स्ट्रेटेजिक डिसीजंस. दिस इज एफटीए स्ट्रेटेजिक डिसीजंस. ओके. Projected GDP of India is still around 6.8 to 7.2%. ये सबके बावजूद, ये मैं बात कर रहा हूँ मार्च 26 तक का जो डेटा हम लोग बात करते हैं उसका मैं बात कर रहा हूँ. So in spite of having this turbulence ongoing, ईरान, इजराइल, यूएसए जो भी जो चल रहा है, उसके बावजूद ये 6 से 7% के बीच में बढ़ेगा. सो एक तारीफ काबिल है कि इन सब चैलेंजेस के बावजूद हमारा एक्सपोर्टर्स या एक्सपोर्ट का जो हमारा जो ये है एक स्ट्रेटेजी है वो सही तरीके से चल रही है. And that is getting reflected from the data. ये एक शायद नहीं दिख रहा होगा क्योंकि काफी छोटा ये है, लेकिन आई विल जस्ट ब्रीफ यू अबाउट व्हाट ऑल इट इज. ये सबसे पहले तो यहाँ पे एक्सपोर्ट्स के बारे में लिखा है कि 825 ये होगा. उसमें से सर्विस एक्सपोर्ट का जिक्र करते हैं. सो 825 बिलियन डॉलर्स इज टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस, जिसमें सर्विस का जो पोर्शन है दैट इज अराउंड 387 बिलियन डॉलर्स. इसका मतलब ये हुआ कि 438 बिलियन डॉलर्स का हम लोग गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स, एंड 387 का सर्विस कर रहे हैं, और दोनों ही इंडिविजुअली भी ग्रो हो रही है. ऐसा नहीं हो कि गुड्स एक्सपोर्ट जा रहा है नीचे और सर्विस एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, दोनों इंक्रीज हो रहा है, राइट. उसके अलावा यहाँ पे मेंशन किया है कि रेमिटेंसीज जो हम बोलते हैं, जो रिसिप्ट बोलते हैं, दैट इज इन द रेंज ऑफ 155 बिलियन डॉलर्स. अभी ये क्या है? टेक्निकल, नथिंग इज टेक्निकल. हमारे जो एनआरआई जो लोग वहां पे, हमारे फैमिली या फ्रेंड्स वहां पे रहते हैं, जो पैसा इंडिया में वहां कमा के जो रेमिटेंस बेचते हैं, ये उसका यहाँ पे जिक्र किया है. दैट इज इन द रेंज ऑफ 155 बिलियन डॉलर्स. एंड यू वुड बी हैप्पी टू नो दिस कि 220 कंट्री में इंडिया इज नंबर 1 व्हेन इट कम्स टू रेमिटेंसेस. सो ये एक अलग ही एक अचीवमेंट हम लोग गिनते हैं कि हमारे लोग ना ही सिर्फ एक्सपोर्ट्स में कामयाब है, वहां जाके भी कामयाब होके पैसा इंडिया में वापस जमा करा रहा है, राइट. सो वी आर इवन फार अहेड देन व्हाट चाइना इज इन दिस
पर्सपेक्टिव। जहां तक फॉरेक्स की बात करते हैं, सो फॉरेक्स करंटली आज के दिन का फॉरेक्स इज $715 बिलियन। पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, 4-5 कंट्रीज का मिला के अगर आप फॉरेक्स गिनते हो, इट इज नॉट मोर देन $100 बिलियन। जब भी हम ऐसे कंपैरिजन करते हैं, देन यू अंडरस्टैंड कि यार इंडिया ने, हम लोगों ने इतना अचीव किया है। सो जैसे मैंने बताया कि डेटा इज वन थिंग, योर इंटरप्रिटेशन इज ऑल्टुगेदर डिफरेंट सिनेरियो। उसके बाद जहां पे यूनाइटेड नेशंस का ये मानना है कि वी स्टैंड एट अराउंड नंबर 3 पोजीशन एज फार एज साउथ ग्लोबल इज कंसर्न। इंडिया रैंक्ड 4th and 5th इन केस ऑफ जीडीपी। हम लोगों ने लास्ट टाइम ग्रेट ब्रिटेन को भी ये किया था, आउटशाइन किया था। What all are the key sectors which are likely to grow in India and perhaps even in exports? Electronics, pharmaceutical, electrical machinery, automobiles, automobile components वगैरह। और ये बाकी में लास्ट में ये सब हम लोग यूके के साथ, ओमान के साथ जो एग्रीमेंट करने वाले हैं, उसका एक ब्रीफ जिस्ट दिया हुआ है। अगेन वी कम टू ए मैक्रो पिक्चर जहां पे अप्रैल से जनवरी तक का $720 बिलियन का इंडिया ने एक्सपोर्ट किया हुआ है, which has increased by 6% in spite of all those duties वगैरह। Now we come to kind of region। पहले वर्ल्ड की बात की कि इंडिया ने वर्ल्ड में कितना एक्सपोर्ट किया। अब आप पूछोगे यार वर्ल्ड की तो बहुत बड़ी बात कर ली अंकित, मुझे ये बताओ कि कौन से रीजन में इंडिया अच्छा कर रहा है और ईयर ऑन ईयर बेसिस कहां पे हम लोग ग्रोथ कर रहे हैं। सो अब हम मैक्रो से माइक्रो पे आएंगे, माइक्रो से मैक्रो पे जाएंगे, देन इट मेक्स सेंस। सो यहाँ पे आई हैव हाइलाइटेड फ्यू रीजन्स लाइक यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया। देन यू सी द डेटा, इट इज इंडियन रुपीज करोड़ में है। सो यूरोप में कितना एक्सपोर्ट किया इंडिया ने पिछले साल? 8,32,000 करोड़ ऑफ रुपीज। पिछले साल से कितना ये कितना परसेंटेज शेयर है? मतलब अगर $100 का इंडिया इज एक्सपोर्टिंग टू द वर्ल्ड एट लार्ज, यूरोप में हम लोग जो एक्सपोर्ट करते हैं दैट कंसिस्ट ऑफ 22%। तो 100 में से 22% तो यूरोप में। अभी समझ में आ रही है चीजें कि व्हाई इंडिया वाज सो ईगर टू साइन एन एफटीए विद यूरोपियन यूनियन कंसीडरिंग दिस रीजन। देखो यहाँ पे अगर आप अमेरिका का परसेंटेज देखते हो, इट इज 26। सेकंड कम्स यूरोपियन यूनियन एंड यूरोप 22%। दैट इज द रीजन कि जब यूरोपियन यूनियन इंपोर्ट्स करता है इंडिया से, तो 2% से लेके 40% तक इंपोर्ट ड्यूटीज लगाता था। नाउ पोस्ट एफटीए वो सब जब जीरो हो जाएगा, तो ये 8 लाख करोड़ से कितना बढ़ेगा? इन द रेंज ऑफ 10-15 lakhs ऑफ करोड़। तो ये जो जंप आएगा, यही हम लोग चाहते थे। और ये एग्रीमेंट की बात पिछले 20 साल से चल रही थी, 18 साल से, करेक्ट। बट क्योंकि यूएस का ये सब हुआ, तो देन वी वेंट इन अ वेरी एग्रेसिव मोड एंड यूरोपियन यूनियन वाज आल्सो लुकिंग फॉर सम अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि उनका तो यूएस से भी बिगड़ा हुआ है ना, अभी तो सब बिगड़ा हुआ है सब चीजें। So that is blessing in disguise. We are finding a lot of opportunities in even in times of crisis, right? So अफ्रीका देखते हैं तो यहाँ पे 10% का दारोमदार है, जहाँ पे इंडिया अगर $100 का एक्सपोर्ट करता है तो $10 अफ्रीका को करता है। लेकिन अफ्रीका का जब ग्रोथ देखोगे, इट हैज गॉन बाय -4, यूरोप -2, और साथ में ग्रोथ भी देखेंगे ना। When you come to Americas, it is 26% प्लस 13% दिख रहा है, और नॉर्थ अमेरिका प्लस 14%। Right? So, in spite of 50% duties given by Trump, और जो 4-5 महीने जो भी सर्कस चला, जो भी चलाया उसने, उसके बावजूद अपने 14% इंक्रीज कर रहे हैं। सो एक अलग तारीफ काबिल चीज है कि ये सब चैलेंज के बावजूद हम इसको एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, स्पेसिफिकली टू यूएस, फॉरगेट अबाउट यूरोपियन यूनियन अदर कंट्रीज। ओके, देन कम्स एशिया। तो एशियन कंट्रीज जो नेबरिंग आपका जो भी हो गया, दैट कंसिस्ट ऑफ अराउंड 40%, अगेन गॉन डाउन बाय -2% लास्ट कॉलम। जब वेस्ट एशिया देखते हैं हम लोग, जैसे जीसीसी कंट्रीज, इट इज 13% एंड 3% से इंक्रीज हुआ है। अब ये 3% जो इंक्रीज लग रहा है, वो नेक्स्ट ईयर इट विल गो डाउन, इट विल बाई माइनस और 0%। क्यों? बिकॉज ऑफ ऑन गोइंग क्राइसिस। तो लाजमी है कि वो वहां पे थोड़ा उसका इम्बैलेंस होगा। एंड देन लास्ट व्हेन वी टॉक अबाउट सीआईएस एंड बाल्टिक नेशंस, सो 22% से इंक्रीज हुआ है। सीआईएस इज योर कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशियन के जो बाकी के नेबरिंग जो कंट्रीज है, वो सब जिसको सेंट्रल एशियन क्लस्टर्स बोलते हैं हम लोग, वहां पे 22% इंक्रीज हुआ है। So for your this thing interpretation is start finding new markets in CIS countries, in Latin American market, and even in African continent, more or less, right? So the idea behind showing this slide is कि कौन से region में हम लोग ज्यादा कर रहे हैं, कहाँ पे growth ज्यादा मिल रहा है, और कहाँ पे हमको focus करना रहेगा।
मैक्रो लेवल की इंफॉर्मेशन जब माइक्रो लेवल आपके बिजनेस में लागू करोगे तो ही इट विल मेक मोर सेंस. मूव टू अनदर स्लाइड. ये देखिए, अभी मैंने कॉमोडिटी वाइज कर दिया. उसमें क्या किया था, टोटल एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया टू रीजन. अब ये टोटल एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया ऑल कमोडिटीज. कई लोग मुझे पूछते हैं कि अंकित मेरे को ये बता कि मेरे को टॉप 10 टॉप 15 कमोडिटीज बताओ ना जहां पे मैं एक्सपोर्ट करना चाहता हूं. मेरा कोई कारखाना नहीं. आई डोंट हैव मैन्युफैक्चरिंग सेटअप. आई डोंट हैव प्लांट और फैक्ट्री. आई एम बेसिकली मर्चेंट एक्सपोर्टर लुकिंग फॉर सम एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज टू गेट इनटू इट. तो ये लो भैया, देयर आर 31 प्रोडक्ट कैटेगरीज. देख लो इसमें, दिस आर द टॉप एक्सपोर्ट प्रोडक्ट और कमोडिटी फ्रॉम इंडिया. सबसे पहले इंजीनियरिंग गुड्स आता है, यानी कि जिसका दारोमदार 27% है. यानी कि अगर इंडिया $100 का एक्सपोर्ट पूरे जहां में पूरे साल में अगर करता है तो उसमें से $27 का एक्सपोर्ट वो इंजीनियरिंग का करता है. सो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, एनी प्रोडक्ट्स यू कैन डू, राइट फ्रॉम पंप्स, वाल्व्स, कंप्रेसर्स, एनी फर्नेस, कोई भी आप कंपोनेंट्स ले लो, ऑटो कंपोनेंट्स ले लो, 2 व्हीलर 3 व्हीलर, दैट कम्स अंडर कैटेगरी ऑफ इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स. तो वो आप कर सकते हो. अनदर हो गया पेट्रोलियम, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स. बाकी की आइटम्स मैंने यहाँ पे स्टेट की है. अभी कई लोग मुझे पूछते हैं कि मुझे टी का बिजनेस करना है ना. टी कहाँ पे, यहाँ पे 28 नंबर पे. सो मुझे टी का एक्सपोर्ट करना है. टी का एक्सपोर्ट इंडिया से कितना होता है, $924 मिलियन. कर सकते हो, गुड मार्केट. इराक, ईरान, रशिया, अ वेरी गुड मार्केट. लेकिन उसका जब एक्सपोर्ट्स का परसेंटेज टोटल देखने जाओगे तो इट इज नॉट इवन 0%. फिर 1% भी नहीं. अंकित मुझे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का एक्सपोर्ट करना है. करो सर, कर सकते हो. कहां पे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, 19 नंबर पे लिखा हुआ है, जहां पे हम लोग $3 बिलियन का एक्सपोर्ट करते हैं. तो एक्सपोर्ट का टोटल कंट्रीब्यूशन का जो पोर्शन है, there is only 1%. Now you want to get into this 1% वाला criteria or you want to get into 27% of criteria, choice is yours. This is specifically for merchant exporters. जिनका खेत खलियान है भाई, वो तो फार्म प्रोडक्ट्स में ही जाएंगे, एग्रीकल्चर में ही जाएंगे. बट मेरा ये मानना है एज ए कंसल्टेंट और एज ए फैकल्टी, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि एग्रीकल्चर में आपको करना है, यू ऑलवेज गो विद वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स. मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ. ओकरा पता है, ओकरा भिंडी जिसको बोलते हैं हम लोग. ओकरा का क्या भाव चलता है होलसेल मार्केट में, 25 रुपए किलो, 30 रुपए किलो. कालूपुर मार्केट में उससे भी कम. ओकरा का पाउडर का कीमत क्या चल रहा है एक्सपोर्ट में, 755 रुपीज पर किलो. Is it make sense to get into okra raw? भिंडी बेचनी है खाली खेत में से निकाल के, या उसको थोड़ा मोटा प्रोसेस करके पाउडर फॉर्म में 755 में बेचना है. चॉइस इज योर्स. चाइना एग्जैक्टली यही कर रहा है. इसलिए चाइना का एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट हमसे ज्यादा है. क्यों? नॉट बिकॉज ऑफ वॉल्यूम, नॉट बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट रेंज, बट इट कैन समहाउ मेक वैल्यू एडिशन, डू सम वैल्यू एडिशन एंड सेल इट अक्रॉस. ऐसा दूसरा प्रोडक्ट है कैबेज फ्लेक्स. कैबेज का 1 किलो का भाव 20 रुपए 25 रुपए, कोई खाता भी नहीं है तो गर्मी में वो भी बंद कर देंगे. कैबेज फ्लेक्स का इंटरनेशनल रशिया से ऑर्डर मिला है मेरे कुछ क्लाइंट को 255 रुपीज पर किलो. कैबेज ले लो यार, कालूपुर से 10 रुपए 20 रुपए में उठा लो होलसेल के भाव में. एक छोटा सा मशीन लाके फ्लेक्स बना के प्रोसेस करके बेचो उसको. यू विल बी हैविंग ए प्रॉफिट मार्जिन ऑफ नॉट लेस देन 200%. दिस इज व्हाट आई मोटा मोटा बिलीव. सो आइडिया इज दिस कि आप रॉ मटेरियल बेचते हो या उसका वैल्यू एडिशन फॉर्म में करके कुछ बेच रहे हो. यू आर सेलिंग मैंगोज, यू आर सेलिंग मैंगो पल्प, मैंगो पाउडर, आमचूर पाउडर बेचो रादर देन सेलिंग मैंगोज. मैंगोज 2 महीना ही चलेगा, आमचूर पाउडर 12 महीने बिकोगे, बेच पाओगे. सो आइडिया इज एग्रीकल्चर में आना है, आओ, मोस्ट वेलकम, बट देन गेट इनटू वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स और डोंट गेट इनटू रॉ प्रोडक्ट्स कि नहीं मैं पोटैटो बेचूंगा, मैं ये बेचूंगा. अब मत करो उसमें. सो द आइडिया इज दिस कि आप जिस प्रोडक्ट कैटेगरी में जा रहे हो उसका टोटल इंडिया का एक्सपोर्ट में वेटेज क्या है. अगर है, अगर नहीं तो क्या करोगे. लाइक वाघ बकरी 1 किलो कितने में मिलती है यहाँ पे, 350 रुपीज, 400 रुपीज. जर्मनी में इट इज गेटिंग सोल्ड एट 1300 रुपीज. कर लो, कौन मना करता है. But then you have the supply chain, you'd have the strategically वहां पे चैनल पार्टनर्स रखे हैं कि Amazon के साथ टाई अप किया है, रिटेल फॉर्मेट्स के साथ टाई अप किया है. सो पैसा है, प्रॉफिट्स है. इज योर स्ट्रेटेजी करेक्ट? सो आइडिया ये. ओके, वी मूव टू नाउ वी कम टू द ट्रेड डील्स, जहां पे हम ट्रेड डील्स के बारे में कुछ बात करेंगे. ये एक ओवरऑल शायद वहां से आपको ये छोटा ये दिख रहा है, शायद काफी कुछ इंफॉर्मेशन एक ही स्लाइड में मैंने लगाई ये करके. सो यहाँ पे मोटा मोटा मैं आपको समझाऊंगा कि इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कौन कौन से रीजन के साथ, कौन कौन से कंट्रीज के साथ है और उसका क्या
अभी करंट स्टेटस है, जैसे परमेश्वर ने बताया कि कुछ एग्रीमेंट यूरोपियन यूनियन के साथ हुई है, बट वो अभी फोर्स में नहीं आई है, आई मीन एक्टिव नहीं हुई है। इट विल टेक कपल ऑफ मंथ्स, शायद दिसंबर 2026 आ जाएगा उनके वो असेंबली में, यूरोपियन यूनियन की असेंबली में पास होते होते, वो सब करते करते। यूके का हो सकता है शायद 1-2 महीने में हो जाए। सो कुछ फोर्स में है, कुछ एक्टिव है, कुछ नेगोशिएशंस में। तो हम लोग ये मानते हैं कि यार पेपर में छाप दिया, मीडिया में बोल दिया, इंडिया यूरोपियन यूनियन का मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील हो गया, या मेरा तो कल से ही हो जाएगा। प्रैक्टिकली ये नहीं होता। it takes its own organic time to get to touch that figure of 0%, right? So यहाँ पे मुख्य तौर पे थोड़ा मोटा मोटा मैं बात करूंगा कि साफ्ता का हो गया। साफ्ता में देयर आर कंट्रीज लाइक अफगानिस्तान, बांग्लादेश वगैरह, जहाँ पे मल्टीलेटरल ट्रेड बोलते हैं। अभी ये जार्गन है भाई, दैट इज नॉट टेक्निकल। कई लोग बायलेटरल ट्रेड बोलते हैं, जहाँ पे 2 कंट्रीज होते हैं। जहाँ पे नंबर ऑफ कंट्रीज ज्यादा है उसको मल्टीलेटरल बोलोगे, एज सिंपल एज इट इज। स्टेटस क्या है? इन फोर्स। फिर क्या आएगा कि इंडिया श्रीलंका, तो भी इन फोर्स है। अभी यहाँ पे जब एशिया में आओगे तो यू विल फाइंड आसियान इंडिया, इंडिया थाईलैंड, इंडिया सिंगापुर, इंडिया मलेशिया, ये सब एग्रीमेंट है। आंसर इज यस, सब एफटीए लिखा हुआ है। अभी कई लोग समझते हैं कि एफटीए, पीटीए, ईएचएस ये सब है क्या। एक तो ये पता नहीं है, दूसरा अगर पता है तो समझते सब एक ही है। अंगे पे બધું एक ज કહેવાય, पीटीए ये બધું एक ज હોય, એવું एक ना। तो उसका मैं डिफरेंस भी समझाऊंगा कि व्हाट इज द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन पीटीए, that is preferential trade agreement, and free trade agreement, and what is EHS। EHS का मतलब अर्ली हार्वेस्ट स्कीम, तो उसका मतलब भी पीछे मैंने समझाया है, सो दैट योर फंडा फ्रॉम टुडे इज वेरी क्लियर कि यार मैं इस सब्जेक्ट में आई शुड नो, 1 घंटे में मुझे सब समझ में आनी चाहिए कि भाई ये बंदा क्या बोल रहा है। ओके, बट बिफोर वी कम टू दैट स्लाइड, वी टॉक अबाउट, देखो यहाँ पे लिखा है कि इंडिया यूके सीईटीए और एफटीए हर कॉलम में लिखा हुआ है। खाली कुछ कॉलम में पीटीए लिखा हुआ है, जहां पे अर्जेंटीना आपको दिख रहा है, जहां पे पीटीए लिखा हुआ है, राइट। तो एक्सिस्टिंग लिखा है, इन फोर्स लिखा है। जब आप यूके की बात करोगे तो साइन लिखा है, साइंड इन 2025, बट इज इट गेटिंग इंप्लीमेंटेड? द प्रैक्टिकल आंसर इज नो। उसको अभी होते होते 2 महीने लग जाएंगे। सिमिलरली जब आप देखोगे कि इंडिया यू, यहां पे लिखा है कि साइंड इन 25 येट पेंडिंग, मतलब ये दिसंबर आ जाएगा। और यूएस का तो सबको पता है, अभी कल ही सरकार ने मना किया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, कि वी वोंट साइन एनी एग्रीमेंट विद यूएस अनटिल एंड अनलेस द यूएस गवर्नमेंट इज क्लियर कि टैरिफ में तुमको करना क्या है। तो पहले तो वो क्लैरिटी डालो। सुप्रीम कोर्ट कुछ वहां की और कुछ बोल रही है, ट्रंप साहब कुछ और कुछ बोल रहे हैं, उनके डेमोक्रेट्स कुछ और कुछ बोल रहे हैं। तो बोले पहले तो यू शुड कम ऑन वन पेज एंड देन वी मेक ए डील। फिलहाल कोई डील नहीं है, इंडिया इज डिनाइंग डील, डील नहीं करनी तुमसे। सो अभी ये इंडिया का रुतबा ही है, इंडिया का पावर ये है कि भाई जो यूएस का मना कर रहा है, पहले तू अपना सॉर्ट आउट कर ले जो भी तरह चल रहा है, देन यू कम एंड डू सम डील। ये चीज पे पहुंचने के लिए यू नीड एब्सोल्यूट पावर। पावर कम्स फ्रॉम योर इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, योर स्ट्रेंथ इन एक्सपोर्ट्स, है ना। ओके, अब देखिए यहाँ पे मैंने क्लियरली आपको समझाया कि व्हाट इज पीटीए, व्हाट इज एफटीए। अब पीटीए का मतलब ये है कि जिसको प्रेफरेंशियल ट्रेड ऑफ एग्रीमेंट बोलते हैं, जहां पे कुछ लिस्ट, जैसे 100 प्रोडक्ट है। मैं आपको बेसिक एग्जांपल के साथ समझा देता हूं कि इंडिया और मलेशिया के साथ एग्रीमेंट हुआ है, और मलेशिया को इंडिया 100 प्रोडक्ट्स बेचता है। मलेशिया बोलता है कि 100 प्रोडक्ट्स में से सिर्फ 10 प्रोडक्ट ऐसे होंगे जहां पे हम लोग आपके प्रोडक्ट्स जब आएंगे तो 0% ड्यूटीज लगाएंगे। इसका मतलब है कि 90% प्रोडक्ट्स पे तो ड्यूटीज लगेगी ही लगेगी। सो जहां पे, जिसको बोलते हैं पॉजिटिव लिस्ट, इसलिए यहाँ पे 10 है। कंपेयर टू एफटीए, एफटीए में इसका उल्टा है। एफटीए में मलेशिया बोलेगा यार 100 प्रोडक्ट्स इंडिया से आते हैं ना, 90 प्रोडक्ट्स ऐसे सिलेक्ट करते हैं जहां पे 0% ड्यूटीज विद इमीडिएट इफेक्ट। आप लोगों ने पेपर में, न्यूज में, फेसबुक में कहीं पे पढ़ा होगा कि यार विद इमीडिएट इफेक्ट 0% ड्यूटीज। दिस इज व्हाट एफटीए। सो एफटीए ज्यादा टर्मिनोलॉजी के हिसाब से, डेफिनेशन के हिसाब से ज्यादा महत्व है और ज्यादा बड़ी चीज है। इसलिए कोई बोलता है कि मैंने पीटीए किया तो उसको ज्यादा तवज्जो नहीं देते, हम लोग एफटीए को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। और सीपा इज काइंड ऑफ योर एफटीए, जहां पे नीचे मैंने उसका लिखा है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट एंड कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑफ एग्रीमेंट। इक्टा भी होता है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट। सो ये अलग अलग टर्मिनोलॉजी, बट दैट ऑल कम्स अंडर एफटीए। टैरिफ रिडक्शन, यहाँ पे मैंने कवरेज लिखा है गुड्स ओनली। जब एफटीए की बात करते हैं, इट कवर्स गुड्स, इट कवर्स सर्विसेज एंड इट कवर्स इवन पीपल। मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि इंडिया और यूके का जो एग्रीमेंट हुआ है, वहां पे मूवमेंट ऑफ पीपल आर मेड फ्री, कि वहां पे बंदा, अपना बेंगलोर का बंदा जाएगा, सिलिकॉन वाला जो भी जाएगा, 2 महीने वहां पे वो काम कर सकता है। पहले ये नहीं था।
अब ये कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट के एफटीए के अंदर ये सब इंक्लूड होता है। हम लोग नॉर्मली समझते हैं कि एफटीए किसी प्रोडक्ट्स का होता है, नहीं, एफटीए प्रोडक्ट्स, सर्विस एंड मूवमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ओके, स्कोप, जहां पे पीटीए स्कोप इज वेरी नैरो, एफटीए का स्कोप बड़े पैमाने पे होता है, ब्रॉड, वेरी ब्रॉड। एम्बिशन लो मीडियम होता है, यहाँ पे हाई होता है, देन वेरी हाई। एग्जांपल्स इंडिया, मर्कोसुर इज ए कॉन्ग्लोमरेट ऑफ क्लस्टर्स ऑफ ब्राजील, अर्जेंटीना, पैराग्वे वगैरह, वो सब लैटिन अमेरिका की 5-6 कंट्रीज है। तो वहां पे स्कोप इज वेरी लिमिटेड। वहां पे बोलते हैं कि इंडिया से ब्राजील कुछ चीज आएगी, 100 प्रोडक्ट्स में से खाली 10 प्रोडक्ट ये तुमको निकाल के दे दिए, उसमें सिर्फ 0% है, बाकी के तो सब 90% प्रोडक्ट्स पे 15% ड्यूटीज वही की वही रहेगी। इट वोंट चेंज। दिस इज पीटीए। सो पीटीए इज नॉट गुड, एफटीए इज गुड, एंड देन सीका इज एब्सोल्युटली वेरी गुड। करेक्ट। सो अभी नाउ वी आर वेरी क्लियर कि हम लोग पीटीए एफटीए में क्या बात करते हैं जार्गन्स में। ओके, वी कम टू यूरोपियन यूनियन की, जहां पे पहले मैं एक स्लाइड में एक जनरल व्यू दूंगा एंड देन वी टॉक अबाउट द स्पेसिफिक्स। सो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है कि हिस्टोरिक एफटीए, मदर ऑफ ऑल लिस्ट, क्योंकि 27 कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व है। 99% ऑफ प्रोडक्ट्स इंडिया का जो एक्सपोर्ट यूरोपियन यूनियन की 27 कंट्री में होगा, इट विल गो एट 0% ड्यूटीज सब्सिक्वेंटली। आज की आज नहीं, वो दिसंबर में होगा, दिसंबर के बाद कुछ सेकंड स्लॉट मार्च 2027 होगा, फिर जून 2027 होगा, स्लॉट्स में होगा। एक्सपोर्ट बूथ कौन से सेक्टर को मिलेगा, मुझे यूरोपियन यूनियन अंकित करना है, मुझे यार ये सब, मुझे बहुत सारे सेक्टर्स नहीं पता, मुझे खाली तू 4-5 सेक्टर बता देना, मेरे काम के निकल जाए। टेक्सटाइल्स वेरी गुड, लेदर, फुटवेयर, मैरीन प्रोडक्ट्स, ज्वेलरी, टी, कॉफी, स्पोर्ट्स गुड्स, टॉयज एंड स्पाइसेस। इसमें तो कोई दो राह है नहीं कि मैं इसमें करूंगा तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा, अच्छा ही आएगा। वो ये गवर्नमेंट ऑफ ये डिसाइड किया हुआ है। सो टैरिफ रिडक्शन इंडिया ने कितना दिया हुआ है, 90 to 86%। सो ओवर 2 बिलियन पॉपुलेशन बेनिफिट इसको डायरेक्टली होने वाली ये चीज है, राइट। अभी आते हैं यूके पे, समझते हैं यूके में क्या हो रहा है। एग्रीमेंट इज एक्सपेक्टेड टू रिमूव टैरिफ्स नियरली 99%। अब आप समझे, यूरोपियन यूनियन भी 99%, यूके भी 99%, ऑस्ट्रेलिया के साथ जो डील किया उसमें भी 98.5%, और इंडिया और यूएई का जो सिपा हुआ था 2022, मैंने बताया मई, उसमें भी 99%। सो 4 कंट्रीज, 3 + 27 कंट्रीज, यानी कि 33 कंट्रीज इफेक्टिवली ऐसी है जहां पे 99% प्रोडक्ट्स इंडिया से जाते हैं, दैट इज विल बी 0% ड्यूटीज। नाउ यू अंडरस्टैंड द इंपैक्ट कि वो जो डेटा मैंने दिखाए थे रीजन वाइज के, मिडल ईस्ट, गल्फ दिखाया था, वेस्ट एशिया दिखाया था, यूरोप दिखाया था, उसमें जो भी था, आप समझ लो कि 2 साल के अंदर वो भी कितना बढ़ावा इसमें होगा। क्योंकि मैंने पहले एग्जांपल के रूप में दे दिया था कि यूएई के साथ जो 2022 में एग्रीमेंट हुआ था, 3 साल में और एक्सपोर्ट इज डबल। इसलिए जो सरकार कहती है कि $1 ट्रिलियन का हमारा एक्सपोर्ट होगा, वो ऐसे नहीं कहती, जरा कैलकुलेशंस, कोई हवा में बात नहीं करता, एवरीथिंग की स्ट्रेटेजी, उनको पता ही होने वाला है, कुछ नहीं करेंगे तो भी हो जाएगा। हमको, गवर्नमेंट को खाली एफटीए करनी है, खेल खत्म, बाकी का काम एक्सपोर्टर्स करेंगे। एक काम उन्होंने कर दिया, अब एक काम हमें करना है। करेक्ट। ओके, स्पेसिफिक गुड्स, अगर मुझे यूके अंकित कुछ करना है तो व्हाट ओलादिब्रो, लेदर तो है, फुटवेयर है, जेम्स एंड ज्वेलरी है, टेक्सटाइल्स है, मैरीन प्रोडक्ट्स है, फार्मा है। अभी आप यूरोपियन यूनियन के प्रोडक्ट्स देखेंगे तो एग्जैक्टली ऑलमोस्ट सेम है, एक्सेप्ट टॉयज एंड स्पाइसेस। सो अगर मैं ये 4 प्रोडक्ट्स लेके भी मर्चेंट एक्सपोर्टर में बन रहा हूं, मैं कुछ ट्रेडिंग कर रहा हूं, तो मेरे लिए तो आज 28 कंट्री ओपन हो गई ना भाई, 27 + 1 यूके। दिस इज हाउ यू इंटरप्रेट द डेटा। करेक्ट। ओके, अभी इसके बाद आते हैं यूएस का। अभी इसका तो क्या हाल है, वी डोंट नो। इंटरिम पैक्ट लगाया हुआ है, 18% है, 10% लग रहा है, एज पर दी वेबसाइट ऑफ इंडियन ट्रेड पोर्टल। मैं भी शायद दिखाऊंगा आपको, वक्त मिलेगा तो 5 मिनट्स एंड में। तो हाउ यू चेक दी इंपोर्ट ड्यूटीज एंड हाउ यू चेक दी एफटीए फॉर योर प्रोडक्ट्स। में किसी का भी एचएसएन कोड लेके यू टेल मी, आई विल शो इट अक्रॉस। काफी सेशंस में मेरे जो व्हेन यू आर देयर आई शो वेबसाइट। तो अभी ये 10% चल रहा है इफेक्टिवली, but things are very unclear, we don't know, even the government doesn't know what is going to happen. एक्सपोर्ट बूस्ट अगर होगा, अगर ट्रेड डील होती है, फिंगर्स क्रॉस, लेट अस होप फॉर द बेस्ट कि ये यूएस ईरान के चक्कर से निकल के थोड़ा कुछ सोचेगा बिजनेस के बारे में, एंड देन कुछ ट्रेड डील होती है तो केमिकल सेक्टर अच्छे काम करेगा, होम डेकोर, हैंडीक्राफ्ट्स, मशीनरी, जेनरिक फार्मास्यूटिकल्स। अभी देखो यहाँ पे जो भी सेगमेंट आपको दिख रहे हैं, दिस सेक्टर्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू फाउंड इट इन यूके एंड यू। समझ में आ रही है? वो 28 कंट्री में अलग प्रोडक्ट जा रहे हैं, यूएस में अलग जा रहा है।
right? This is how you perceive, this is how you select the product and select the region. फोकस एरिया ऑफ कोर्स जो गारमेंट्स में रहेगा, ज्वेलरी है, फुटवेयर। तो फुटवेयर इज कॉमन फॉर यूके, यूएस एंड यूरोपियन यूनियन। अगर फुटवेयर में कोई काम कर रहा है तो उनका तो बढ़िया काम होना है। दिस इज व्हाट वी परसीव, ए फॉलोड बाय टेक्सटाइल्स ऑफ कोर्स। अभी फिर से यू पे आता है, एक यू का एक स्लाइड दिखाया था, नाउ वी गो इनटू डिटेल में जाना पड़ेगा ना, एक स्लाइड में क्या होता है। सो इंडिया यू का ट्रेड यहाँ पे दिखाया है लास्ट 5 इयर्स, जैसे सर ने बताया था कि 136 बिलियन डॉलर्स का टोटल ट्रेड है इंडिया और यूरोपियन यूनियन की 27 कंट्री के साथ, करेक्ट। नाउ वी गो इनटू अनदर डिटेल्स। सो यूरोपियन यूनियन इज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफिशियली ऑन पेपर्स। ये मैं नहीं कहता, ये WTO की वेबसाइट बोलती है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। Where the bilateral trade is reaching 136 बिलियन डॉलर्स, इंडिया का जो गुड्स का एक्सपोर्ट है वो करीबन 76 बिलियन डॉलर्स का है। और सर्विस जो यूरोपियन यूनियन की 27 कंट्री को बेचते हैं, सर्विस इन द सेंस ऑफ ITES सर्विस, कंसल्टिंग सर्विस, इंजीनियरिंग कंसल्टिंग सर्विस, आर्किटेक्ट सर्विस, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग सर्विस, डिजाइन सर्विस, ये सब कंसल्टिंग सर्विस हुई, ये सब काइंड ऑफ सर्विसेज ही हुई। तो वो सब मिला के अराउंड 30 बिलियन डॉलर्स का हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। अब मजे की बात यह है, जैसे पद्मी मैंने बताया था कि वेदर ट्रेड सरप्लस है या नहीं है, सिंपल आंसर इज यस। ये मैं नहीं कहता, WTO कहता है कि इंडिया जो भी एक्सपोर्ट करता है और यूरोपियन यूनियन के 27 कंट्रीज से जो इंपोर्ट करता है, फिर भी इंडिया का एक्सपोर्ट 15 बिलियन डॉलर से ज्यादा है। सो व्हाट, अपना ट्रेड सरप्लस इज 15 बिलियन डॉलर्स। यूएस के साथ अपना ट्रेड सरप्लस इज 56 बिलियन डॉलर्स। नेदरलैंड्स के साथ इंडिया का ट्रेड सरप्लस इज अराउंड 8 to 10 बिलियन डॉलर्स। सो ये 3 रीजन या कंट्रीज ऐसे हैं जहां पे इंडिया का ट्रेड सरप्लस है। चाइना के साथ ट्रेड माइनस है, जिसको आप ट्रेड डेफिसिट बोलते हो टेक्निकली। कितना? 100 बिलियन से ज्यादा। अभी चाइना अलग ही दुनिया है, वो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, वी कम टू अवर टॉपिक ऑफ EU। नीचे देखते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि 15 बिलियन डॉलर्स का सीधा आपका ट्रेड सरप्लस है। अभी यहाँ पे ये यूरोपियन यूनियन की तुम बात कर रहे हो, मुझे 4-5 सेक्टर दिखा भी दिए। इसमें थोड़ा मुझे और गौर करना है कि मैं और कौन से सेक्टर्स या प्रोडक्ट कैटेगरी देख सकता हूँ जहाँ पे मुझे सीधा फायदा होने वाला है व्हेन आई एक्सपोर्ट टू यूरोपियन यूनियन। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड्स, यहाँ पे लिखा है प्रेफरेंशियल एक्सेस। अभी समझ में आ रही है? प्रेफरेंशियल एक्सेस PTA, कि जैसे चाय हो गया, कॉफी हो गया, तो सब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में 0% ड्यूटीज यूरोपियन यूनियन नहीं करेगी। ओनली ऑन सिलेक्टेड आइटम्स, 10 to 15 आइटम्स आउट ऑफ 100 आइटम्स, या 10 to 15% ऑफ आइटम्स। सो दिस इज हाउ यू अंडरस्टैंड हियर। वो प्रोडक्ट कैटेगरी में मैं जा तो सकूंगा, बहुत आसान है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में जाना, वो ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, इजी है, खेत खलियान से लिया उठा के दे दिया। बट टेक्निकली इट इज नॉट दैट इजी। Practically, when you export agriculture products, when you export nutraceutical या pharmaceutical, वहां पे stringent norms है, क्योंकि वो consumption करने वाली चीज है, बंदा खाएगा, इंसान खाएगा उसको। तो वहां पे the tariff duties is not issue. Non-tariff barriers in the context of न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है, फिर इसमें यूरिया क्या है, ऑर्गेनिक है नहीं है, कार्सिनोजेनिक मटेरियल क्या है, फला क्या है, ये क्या है, वो सब चीजों का काफी दारोमदार रहता है। इसलिए लगता है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में जाना बहुत इजी है, लेकिन प्रैक्टिकली एक्सपोर्ट्स उस कंट्रीज में, उस रीजन में जहां पे रेगुलेशन है, वहां पे करना इज डिफरेंट स्टोरी, टू पर्सपेक्टिव, है ना। सो ये है इंजीनियरिंग गुड्स टैरिफ कट्स अप टू 22% सीधा। लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स टैरिफ वाले, लेबर इंटेंसिव में आपका लेदर आ गया, टेक्सटाइल्स आ गया, ये सब बढ़िया है। अच्छा, टेक्सटाइल्स में और अच्छा है क्योंकि बांग्लादेश और श्रीलंका नॉट डूइंग वेल, तो उनका तो अभी इकोनॉमिकली दे आर गोइंग टू अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल, लॉट ऑफ टर्बुलेंस, है ना। तो वो पाकिस्तान, तो टेक्सटाइल्स में हमारा कंपटीशन सीधा इन 3 कंट्रीज से प्लस चाइना एंड वियतनाम से। सो अभी ये 5 में से 3 कंट्रीज को कंपटीशन से निकल गई, करेक्ट। दिस इज हाउ यू इंटरप्रेट द डेटा, कि मुझे अगर आना है तो मुझे ज्यादा एनालिसिस नहीं करना। हम लोग कहते हैं हमारी जबान में टू मच एनालिसिस इज पैरालिसिस। मैं खाली मोटा मोटा उसको देख लूंगा, बर्ड आई व्यू देख लूंगा, हेलीकॉप्टर व्यू देख लूंगा, मैं आई विल ट्राई माय लक आउट देयर। ओके, सो इसके बाद लेदर, ऑफ कोर्स 0 ड्यूटी, सीधा एक्सेस। कोई भी लेदर प्रोडक्ट्स, लेदर बेल्ट आ गया, वॉलेट्स आ गया, पर्स आ गया, शूज आ गया, 0% ड्यूटीज। मेडिकल डिवाइसेस फ्री एक्सेस अप टू 99% ऑफ द टैरिफ्स। जेम्स एंड ज्वेलरी फ्री, आपका फुल प्रेफरेंशियल, आपको 4%। टेक्सटाइल 0%। प्लास्टिक रबर, प्लास्टिक्स का अगर कर रहे हो तो वहां पे प्रेफरेंशियल है। प्लास्टिक के हर एक प्रोडक्ट जब यूरोपियन यूनियन को बेचोगे 0% पे नहीं होगा,
ओनली 10-15% प्रोडक्ट्स पे ही करेंगे. Mines and minerals again 0%. Chemicals almost 98%. Furniture, home decor reduction up to 10%. अब ये देखते हैं कि ये तो हो गया कि मुझे कौन से प्रोडक्ट्स में फायदा होगा नहीं होगा, लेकिन मुझे ये बताओ कि यूरोपियन यूनियन में फिलहाल कौन से इंडिया से बड़ी तादाद में प्रोडक्ट जा रहे हैं, मुझे वो समझना है. एक आइडिया लगा लो. सो यहाँ पे 24% दिख रहा है आपको. सो दैट इज इंजीनियरिंग प्रोडक्ट. उसके बाद आपको ये जो ब्लू में दिख रहा है दैट इज केमिकल्स एंड एलिड मटेरियल. बाकी का उसके बाद दिख रहा है बेस मेटल्स. और 10% आपको जो पिंक में दिख रहा है दैट इज बेसिकली टेक्सटाइल्स. सो इंडिया अगर $100 का यूरोपियन यूनियन में एक्सपोर्ट करता है तो $24 का तो सिर्फ इंजीनियरिंग जाता है. सो इंजीनियरिंग में कुछ भी करो, देयर आर 20 डिफरेंट कैटेगरीज विद इन इंजीनियरिंग सेक्टर. जैसे मैंने पंप स्वाब्स का केस बताया, यू कैन सेलेक्ट एनी ऑफ दोस प्रोडक्ट्स. तो वहां पे अच्छा ही काम हो रहा है और अच्छा ही कर सकते हैं अपने. ये देखें, FTA 1 एग्रीमेंट 27 नेशंस 6.4 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट. अभी ये तो सब अंकित इंडिया का बात किया, इसका बात किया रीजन का. मैं गुजरात में हूँ, मेरे लिए काम का चीज क्या है? मैं गुजरात में हूँ, मैं मर्चेंट एक्सपोर्टर हूँ या मेरा जो भी है, तो मैं कौन से सेक्टर्स या कौन से प्रोडक्ट कैटेगरी में करूंगा जिससे सीधा मुझे फायदा हो जाएगा व्हेन इट कम्स टू यूरोपियन यूनियन. सो 7 कैटेगरीज. टेक्सटाइल्स, अपैरल्स, वेरी गुड. इंजीनियरिंग गुड्स ऑलवेज एवरग्रीन फिट जिसको मैं बोलता हूँ. फार्मा, मेडिकल डिवाइसेस, फार्मा प्लस मेडिकल डिवाइसेस भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है. फार्मा इंक्लूसिव APIs एज वेल. इलेक्ट्रॉनिक्स सब जानते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी, केमिकल्स एंड मेरीन प्रोडक्ट्स. सो ये 7 प्रोडक्ट्स में अगर आप कहीं से भी जुड़े हुए हो, यूरोपियन यूनियन का मार्केट इन सब प्रोडक्ट्स के लिए इज वेरी पॉजिटिव, द वे फॉरवर्ड, राइट. और बाकी सब स्टेट्स भी मैंने दिया है, बट देन वी टॉक प्रिसाइजली ऑफ व्हाट एज ए गुजराती एंटरप्रेन्योर व्हाट वी कैन डू. ये एक बड़ा चार्ट है, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट डिटेल्स, लेकिन यहाँ मैंने समझाने की कोशिश की है कि इंडिया से यूरोप में जो चीज़ें जाती हैं तो दैट इज मशीनरीज जाती हैं या फिर टेक्सटाइल्स का जाता है, तो सीधा सीधा कंपटीशन कहाँ पे है. सो कुछ कुछ केस में कंपटीशन इज फ्रॉम चाइना एंड US. कुछ कुछ प्रोडक्ट्स में जैसे टेक्सटाइल्स में कंपटीशन इज फ्रॉम वियतनाम बिकॉज ऑफ लो लेबर कॉस्ट. इट इज फ्रॉम बांग्लादेश, श्रीलंका. लेकिन अभी बांग्लादेश, श्रीलंका के साथ अभी ज्यादा नहीं काम करेंगे ये सब कंट्रीज. देयर आर 2 रीजंस. द इकोनॉमिकली सोशली वो कंट्री अभी ठीक ठाक नहीं है, नंबर 1. नंबर 2, पहले क्या था कि यूरोपियन यूनियन ने ये 2 नेशन पे 0% ड्यूटीज लगाया था कि एनीथिंग कमिंग फ्रॉम श्रीलंका और बांग्लादेश लेट अस रिसीव एट 0% ड्यूटी, क्योंकि दे आर वेरी पुअर कंट्रीज. और इंडिया पे लगाया था 12%, 25%, 26% ड्यूटीज. पोस्ट एग्रीमेंट India is also will get benefit of 0%. So competition में now we are at par with Bangladesh, Sri Lanka. But क्योंकि वो countries नीचे जा रही हैं, so we have an upper edge. So this is how you perceive the, जैसे हम लोग बोलते हैं geopolitics are a beautiful subject. उसको हम अपने business में कैसे correlate करते हैं, उसी का झलक दिखाने की यहाँ पे थोड़ा बहुत कोशिश किया है. और वी कम टू UK, ऑफ कोर्स. अब यूरोपियन यूनियन खत्म हो गया, अब UK के डायनामिक्स में जाते हैं कि उसमें आगे ये क्या है. ये देखें, यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स कैटेगरीज है. प्रोसेस फूड हो गया, वेजिटेबल ऑयल हो गया, आपका ट्रांसपोर्ट ऑटो हो गया, इलेक्ट्रिकल, ये सब कैटेगरीज पे 70% तक ड्यूटीज हुआ करती थी, विच इज नाउ बिकम 0. सो दिस इज द एग्जैक्ट बेनिफिट ऑफ व्हाट FTAs आर, है ना. $100 का चीज बेचते थे, वहां पे प्रोसेस फूड 170 में उसको लैंडिंग कॉस्ट पड़ता था, और वो 70% चला गया. सर वी आर ओनली 0. This is how you calculate a landing cost for your buyer in that country. So there is essentially all zeros. थोड़ा और देखते हैं उसमें ट्रेड डील में क्या है. So 99% of the products going from India to UK will enjoy 0% duties. 56 बिलियन का bilateral trade है, पहुंच जाएगा 2030 तक. FTA covers nearly 100%. We know that. Indian farmers access to UK's $38 billion एग्रीकल्चर मार्केट. हम लोग एग्रीकल्चर अभी हमें बताया कि एग्रीकल्चर करना है. एग्रीकल्चर में 2 चीज करनी है. एक तो आपको सर्टिफिकेशन प्रूफ करना है, उस कंट्री में रेगुलेशंस आर वेरी स्ट्रिंजेंट, उसको फुलफिल करना है. एंड थर्डली यू गेट इनटू वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, जैसे ओकरा पाउडर हो गया, कैबेज फ्लेक्स हो गया, ओनियन डिहाइड्रेटेड, ये महुआ में अपना जो प्लेयर्स हैं वो हो गए. ऐसे सब प्रोडक्ट्स में जब हम आएंगे देन यू कैन चेंज योर बैलेंस शीट परहैप्स. खाली ओनियन से कुछ या खाली पाउडर उससे कुछ नहीं होने वाला. ओके, सो अराउंड $900 million का बूस्ट मिलेगा फॉर लेदर प्रोडक्ट्स. जैसे मैं बताया, लेदर, फुटवेयर, अगर आपके प्रोडक्ट्स या उससे कोई ताल्लुकात आपकी इंडस्ट्रीज हैं तो ऐसे प्रोडक्ट सिलेक्ट करने चाहिए आपको. 75,000 इंडियन वर्कर्स exempt फ्रॉम UK सोशल सिक्योरिटी नेक्स्ट 3 years.
मैंने बताया था कि FTA covers goods, services and movement freely movement of human resource. जेम्स एंड ज्वेलरी का एक्सपोर्ट विल डबल इन नेक्स्ट 2-3 years. ये कोई 5 साल की बात नहीं कर रहे, 2 साल में डबल हो जाएगा. ओके. इंडियन प्रोफेशनल्स मैंने बता दिया. इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स बड़े पैमाने पे होगा क्योंकि मेडिकल डिवाइसेस पे भी 0%. मेडिकल डिवाइसेस एनीथिंग, आपका बीपी का मशीन है, शुगर का मशीन है, आपका थर्मोमीटर है, आपका ऑक्सीमीटर है, एनीथिंग फॉल्स अंडर योर मेडिकल डिवाइसेस विल नाउ हैव 0% ड्यूटीज. Indian professionals can work in 35 UK sectors for 24 months without a UK office. बोले यूएई में ऑफिस करो, वर्चुअल ऑफिस करो, अभी बोलते हैं ऑफिस की जरूरत नहीं, ऐसे ही काम करो. So this is how FTA helps. It's not only, it doesn't talks only about products. जीरो हो गया. ये सब फायदे जब when you go into the details, you understand कि ये बड़े पैमाने पे चीजें सक्सेस मिली है. एज ए कंट्री we are doing very good perhaps. अच्छा, टॉप प्रोडक्ट यूरोपियन यूनियन के तो तूने मुझे टॉप प्रोडक्ट्स दिखा दिए, मुझे यूके के बता सकता है? ये लो, ये रहा. टेलीकॉम इंस्ट्रूमेंट्स, पेट्रोलियम, ये सब $1 million में मैंने मेंशन किए. RNG is nothing but ready-made garments, आपका टी-शर्ट्स या वीमेन कुर्तीज, टॉप्स, एनीथिंग रिलेटेड टू दोस. आयरन एंड स्टील हो गया, देन प्रोडक्ट्स ऑफ आयरन एंड स्टील, RNG मैन-मेड फाइबर्स. यहाँ पे मैंने थोड़ा और प्रिसाइज दिखाया. नाउ यू हियर ऑन दिस स्लाइड यू अंडरस्टैंड द एसेंस कि हम लोग क्या कर रहे हैं और यूके में हमें क्या करना चाहिए. देखें, इंडिया टोटल एक्सपोर्ट ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स लास्ट ईयर 24-25 का लेटेस्ट डेटा है $193 बिलियन. हम लोग यूके में कितना करते हैं? सिर्फ 4 बिलियन. है स्कोप बढ़िया. क्यों 4 हो रहा है? मे बी बिकॉज ऑफ ड्यूटी स्ट्रक्चर, मे बी प्रोडक्ट इज नॉट एक्सेप्टेड. लेकिन अभी तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया ना, अभी तो 4 बिलियन से सीधा 40 होना चाहिए, या 8 होना चाहिए, या 10 होना चाहिए. ऑफ कोर्स इन ए कपल ऑफ नेक्स्ट 1 or 2 years बाय 2028-29. एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट इंडिया करता है $37 बिलियन. इट इज नॉट इवन 1 बिलियन टू यूके. सो यूके का कंट्रीब्यूशन इंडिया के एक्सपोर्ट्स में ना के बराबर है. ये स्लाइड में ये समझाना चाहता हूं. और जब बेस जब छोटा होता है या कम होता है, देन द स्कोप ऑफ स्केलिंग अप इज वेरी हाई. टेक्निकली तुम्हारो बिजनेस 10 करोड़ चाहिए तो 100 करोड़ से 50 है. तुम्हारो बिजनेस 1000 करोड़ चाहिए तो देन स्केलिंग इज एन इश्यू. सो दिस इज हाउ यू परसीव एंड इंटरप्रेट द डेटा. सेम एज केमिकल्स $35 बिलियन का करते हैं यार. 57.57 भी नहीं है, 57 मिलियन भी नहीं है. फार्मास्यूटिकल 23 के सामने 1, जेम्स एंड ज्वेलरी 4 के सामने 1. सो दिस इज हाउ लेदर प्रोडक्ट्स ह्यूज पोटेंशियल. अब आते हैं यूएस पे. अभी देखो ये टाइमलाइन है. क्या टाइमलाइन है? ट्रम्प सरकार ने जो दिया था, ये ट्रम्प को देख के, यूएस को देख के एक ही चीज अपने को याद आती है कि भाई ये कहना क्या चाहता है. वो समझ नहीं आ रहा है. सुबह कुछ बोलेगा, शाम को कुछ और बोलेगा. 26% लगा है अप्रैल को, अप्रैल में फिर 10% ड्यूटी 90 दिन के लिए ला दिया. जुलाई 30 को उन्होंने 25% कर दिया. अगस्त में 50% ला दिया. February 26 में 15 to 18 लेके आया. फिर 25 प्यूनिटिव लेके आया. और अभी 10% कुछ लगा रहा है. फॉर ऑल 150 days on all countries, any 220 countries. वो गाना भी आ गया उसके अंदर. बोले anything coming from any country across world to US next 150 days 10% duties. So it is very erratic. तो अनप्रेडिक्टेबल है. तो पता नहीं, इसलिए भी सरकार में कल ऑफिशियली स्टेटमेंट दिया है एक्सटर्नल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कि भाई साहब पहले तुम नक्की कर लो तुमको क्या करना है, कौन सा ड्यूटीज लगेगा, 20 लगेगा, 25 लगेगा, 50 लगेगा तो ठीक है, हमको पता लगेगा कि 50 लग रहा है. अभी ये रोज चेंज हो रहा है. सो वी कैन नॉट साइन एनी ट्रेड एग्रीमेंट विद यूएस अंटिल अनलेस यू आर ऑन सेम पेज. तो अभी खफा हो गए ये सब. तो देखते हैं आगे क्या होता है. एनीवेज, लेकिन अगर ड्यूटीज है, ड्यूटीज नहीं है, ट्रेड डील है, नहीं है, इसके बावजूद व्हाट ऑल आर द एग्जेम्प्टेड सेक्टर्स जो रहे हैं. फार्मास्यूटिकल को उसने टच नहीं किया क्योंकि इंडिया से जेनरिक्स बड़े तादाद में यूएस में जाता है. अगर वह फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स पे इंक्लूडिंग जेनरिक्स इनपुट ड्यूटीज लगाता भी यूएस में, तो यूएस घुटनों पे आ जाता. क्योंकि इंडिया का फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स टू यूएस इज $13 बिलियन. उसमें से $11 बिलियन आर ऑफ जेनरिक्स. तो वो जंप उसके उन्होंने टच नहीं किया क्योंकि वो खत्म हो जाता पूरा सेक्टर वहां पे. सेमीकंडक्टर्स ही कैन नॉट टच, एनर्जी सोर्सेस ही कैन नॉट टच, क्रिटिकल मिनरल्स फॉरगेट अबाउट, बिल्कुल नहीं कर सकता वो. तो ये सब चीजों में वहां पे वो नहीं कर सकता. इसलिए हम लोग बोलते हैं कि स्पेशली जेनरिक ड्रग जो इंडस्ट्री है, 50% ऑफ यूएस फार्मास्यूटिकल मार्केट का जो दारोमदार है वो इंडिया पे डिपेंड है. इसलिए वो बंदा वो सेक्टर को टच नहीं कर सकता. राइट.
सेक्टर्स मोस्ट अफेक्टेड, अभी ये सब 50%, 25%, 18%, जो भी उससे जो भी ये पिछले 6-7 महीने से चल रहा है, व्हाट एल आर द सेक्टर्स व्हिच आर मैक्सिमम अफेक्टेड? तो टेक्सटाइल्स बहुत बुरा हाल हुआ एज फार एज यूएस इज कंसर्न। जेम्स एंड ज्वेलरी, लेदर, फुटवेयर, मैरीन प्रोडक्ट्स, केमिकल्स, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स, ये सब सेक्टर्स मिला के 55% का कंट्रीब्यूशन, इसलिए ज्यादा दारोमदार था। लेकिन इसके बावजूद हम लोगों ने यूएस में एक्सपोर्ट्स ज्यादा किया है। ये मैं नहीं कहता, ये डब्ल्यूटीओ, यूएस की ही वेबसाइट कहती है। ड्यूरिंग द पीरियड अप्रैल टू जनवरी 26, इंडियाज मर्चेंडाइज यानी कि गुड्स का एक्सपोर्ट हुआ है 5% से इंक्रीज हुआ है 5.85% टू $72 बिलियन। और ये जनवरी तक का है, फरवरी मार्च अभी बाकी है। सो हैविंग सेड एंड डन एंड ऑल अबाउट ईरान एंड ये सब के बावजूद हमारा 4.5% से एक्सपोर्ट इंक्रीज मिलेगा यूएस में टिल मार्च 26। दिस इज व्हाट वी परसीव। अच्छा, अगर ट्रेड डील नहीं होती, वस कम वस उसको उसके दे डोंट हैव एनी ऑप्शन बट टू गो फॉर ट्रेड डील। अगर नहीं होती तो, और अगर नहीं थी तो कितना फर्क पड़ता था? आप लोग बोलोगे यार ये इतना 50% डाला, उनकी 26% डाला, तो भी इंडिया पे इकोनॉमी पे एक्सपोर्ट्स पे फर्क क्यों नहीं पड़ा? ये स्लाइड में वो समझाने की कोशिश की। जब हम देखते हैं कि परसेंटेज ऑफ इंडिया टोटल मर्चेंट एक्सपोर्ट जो भी रीजन वाइज करते हैं, तो इंडिया अगर $100 का एक्सपोर्ट पूरे जहां में करता है, $18 का एक्सपोर्ट वो यूएस में करता है। सो वी आर ओनली 18% वल्नरेबल, उससे ज्यादा अपनी वल्नरेबिलिटी है ही नहीं। बाकी का तो रिस्क अपन ने स्पेयर किया हुआ है। करेक्ट, नंबर 1। नंबर 2, जब देखोगे कि इंडिया का जो इकोनॉमी है उसमें एक्सपोर्ट का परसेंटेज क्या है, यानी कि अगर जीडीपी मेरा $100 है तो उसमें से एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन इज ओनली $22, इसलिए ज्यादा अफेक्टेड नहीं है। चाइना का कितना है? 19%, इसलिए वो अपने से भी कम उसको फर्क पड़ता है, राइट। लेकिन वियतनाम का देखो 87%, यानी कि वियतनाम की जो भी इकोनॉमी है उसमें से 87% इज डिपेंड ऑन एक्सपोर्ट्स या फिर यूएस एक्सपोर्ट्स। तो डायरेक्टली इंपैक्ट होगा, अगर वो कुछ करेगा तो हम पे ज्यादा अफेक्ट नहीं होगा। एंड देन थाईलैंड एंड अदर, थाईलैंड इज आल्सो 65%। अभी ये सब के नजर में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्या स्टेप्स लिए या क्या कुछ लेने वाला है? फर्स्ट इज दे विल कंटिन्यू रोड टैप बेनिफिट रेमिशन ऑफ ड्यूटीज टैक्सेस फॉर एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स एंड RoSCTL, जो कि आपका टेक्सटाइल्स और फैब्रिक्स और रेडीमेड गारमेंट्स पे सरकार देती है। यानी कि अगर आप टी शर्ट एक्सपोर्ट्स कर रहे हो या आप ग्रे फैब्रिक्स एक्सपोर्ट कर रहे हो दुनिया के किसी भी मुल्क में, तो अगर $100 का एक्सपोर्ट कर रहे हो, इंडियन गवर्नमेंट आपको 6.5% वापस करती है, मैक्सिमम 8.05% तक। यानी कि $100 का एक्सपोर्ट करो, $8 तुमको अपनी सरकार वापस करेगी। सो ये जो रोडटेप और RoSCTL बेनिफिट है, गवर्नमेंट उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा सो दैट एक्सपोर्टर्स को मोटिवेशन मिले और एक्सपोर्ट्स बढ़ता रहे अपना। और ये 10,500 प्रोडक्ट्स पे अभी ये एप्लीकेबल है, उसको बढ़ाने की कोशिश करती है सरकार, बोलती है इसको 14-15,000 तक लेके जाएंगे हम। सो दैट इज द गवर्नमेंट डिसीजन, लेट अस वेट एंड फिंगर्स क्रॉस के क्या होता है। एक्सटेंशन ऑफ PLI स्कीम, सो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम जो लॉन्च की थी, वो करीबन 15 सेक्टर्स पे स्प्रेड है। दैट इंक्लूड्स योर फार्मास्यूटिकल्स, दैट इंक्लूड्स APIs, दैट इंक्लूड्स मेनी अदर बिजनेस सेक्टर्स। तो यहाँ पे ये था कि जो भी सेक्टर में या जो भी कंपनी ने, जैसे मैं APIs में, मेरा फार्मास्यूटिकल का कारखाना है छोटा मोटा, मेरा यहाँ पे अहमदाबाद में मेरा फार्मास्यूटिकल का कारखाने का जो टर्नओवर है वो 5 करोड़, नेक्स्ट ईयर वो 10 करोड़ का हुआ है, तो इंक्रीमेंट कितना हुआ? 5 ईयर का हुआ। तो 5 करोड़ पे मुझे 6% गवर्नमेंट बेनिफिट देती थी। दिस इज व्हाट बेसिकली PLI स्कीम इज। मैंने आपको बहुत एग्जांपल के दौर में समझा, मैं नेटिविटी पे उसके नहीं जा रहा हूँ, बट दिस इज व्हाट PLI स्कीम। अभी ये 15 सेक्टर्स पे थी, गवर्नमेंट उसको बढ़ा के 20-21 सेक्टर्स पे करने वाली है, ताकि हमको ये बेनिफिट मिले और एक्सपोर्ट्स हो। आप लोगों को पता होगा कि आईफोन का एक्सपोर्ट्स इंडिया से बड़े तादाद में हो रहा है। नंबर 1 रीजन इज प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, उसकी वजह से ये हुआ है करके। ओके, उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम लॉन्च अभी है ही, लेकिन उसको एक्सटेंड करेंगे। जो सरकार बोलती है यहाँ पे, ये कहते हैं कि आप जो लोन उठा रहे हो किसी बैंक से, मान लो कि आप 10%, 11% ब्याज पे उठा रहे हो, सरकार आपको 3% उसमें माफी करेगा, सब्सिडाइज करेगा। सो योर बाइंग रेट वुड बी अराउंड 7% rather than 10%, या 8% rather than 11%। तो इसको भी अभी कंटिन्यू करना रहेगा बिकॉज ऑफ कंसिडरिंग द ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स जो हो रहा है वो करके। सिंप्लीफाइड कॉम्प्लायंस, सिंगल विंडो क्लियरेंस की बात करते हैं, एंड देन ऑफ कोर्स फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फास्ट ट्रैक पे इसको लेके जाएंगे।
What all are the opportunities? We can explore continents of Latin America, African continent. We can sign more free trade agreements. इंडिया का भी ओमान के साथ करने वाला है, कतर के साथ करने वाला है. तो जीसीसी में 6 कंट्रीज है. यूएई हो गया, यूएई इज वन, सऊदी हो गया, कतर, बहरीन, कुवैत एंड अपना सऊदी. तो ये जो 6 कंट्रीज है उसके साथ इंडिया करार करेगा. अभी सिर्फ यूएई के साथ किया है तो अपना एक्सपोर्ट्स डबल हो रहा है 3 साल में. अब सोच लो कि बाकी के 5 कंट्री के साथ करेगा तो वो उसको इंक्रीमेंटल एक्सपोर्ट्स मिलेगा. दिस इज व्हाट वी आर टचिंग. नॉट ओनली कंट्रीज, वी आर टचिंग ऑल रीजन्स. हमने कंट्री को टच, यूरोपियन यूनियन 27 कंट्री, मर्कोसुर 6 कंट्री, आसियान 11 कंट्री. सो व्हेन इंडिया साइन एग्रीमेंट विद मलेशिया एक एक हुआ, लेकिन व्हेन इंडिया साइंस एग्रीमेंट विद आसियान 10 कंट्री में लागू पड़ेगा. स्ट्रेटेजिक डिसीजन, वेरी लॉन्ग टर्म थॉट प्रोसेस बिहाइंड दिस. ओके, अब बात करते हैं बेसिक एक्सपोर्ट पोटेंशियल मार्केट. चलो ये तो भाई एफटीए का ये बताया, यूरोपियन यूनियन, यूएस सब बताया. मुझे अब ये बताओ कि मैं अगर रीजन पकड़ता हूँ साउथ ईस्ट एशिया, उसमें की मार्केट्स कौन से हैं आप मेरे लिए अंकित? इंडोनेशिया, वियतनाम, मलेशिया, 3 मार्केट्स. ऑफ कोर्स थाईलैंड वगैरह सब है, लेकिन मैं वैल्यू के हिसाब से, इंडिया के हिसाब से पोटेंशियल ये मैंने गिना है. अच्छा, उसमें मैं कौन से प्रोडक्ट्स करूँ कि जहां पे मेरा सक्सेस प्रोबेबिलिटी रेशियो इज वेरी हाई? यू कैन गो फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो कंपोनेंट्स, पार्ट्स, टेक्सटाइल्स, ह्यूज डिमांड फॉर कॉटन एंड इंडियन गारमेंट. अफ्रीका में मैं कौन सा करूं? अभी देखो कितना स्मार्टली यहाँ पे लिखा हुआ है. अफ्रीका, नाइजीरिया इज समवेयर हियर, वेस्ट नॉर्थ. साउथ अफ्रीका इज सदर्न पोर्शन एंड केनिया इज ईस्टर्न पोर्शन. यानी कि नॉर्थ, ईस्ट एंड साउथ के एक एक कंट्री यहाँ पे लिया हुआ है. और उसमें कौन सा प्रोडक्ट करें अंकित? फार्मास्यूटिकल करो, जेनरिक्स करो, एग्रीकल्चर मशीनरीज करो, फूड प्रोडक्ट्स करो, स्पाइसेस करो, प्रोसेस फूड करो. लैटिन अमेरिका ओनली 2 कंट्रीज, पैराग्वे, उरुग्वे को टच नहीं कर रहा हूं, ब्राजील, मेक्सिको खत्म. कौन सा? आईटी, मशीनरी, केमिकल्स. मिडल ईस्ट, यूएई, सऊदी, बाकी की 4 कंट्रीज में टच नहीं कर रहा हूं. ज्वेलरी हो गया, स्पाइसेस हो गया, कंस्ट्रक्शन मटेरियल हो गया, राइट. अभी इसका विपरीत, वो रीजन था, कंट्रीज था, प्रोडक्ट था. अभी ये प्रोडक्ट से मेरे लिए कौन से रीजन में, अगर मैं फार्मास्यूटिकल में अंकित हूं, मैं सबसे कौन सा मार्केट अच्छा है? यूएस. यूएस इज कॉमन फॉर ऑल, वी ऑल नो. अभी थोड़ा टर्बुलेंस है तो अभी मत करना है, अभी बायस ढूंढना है या आपको ऑर्गेनिकली यूएस में करना है तो फॉर टाइमिंग रुक जाओ, थोड़ा 6-7 महीने इत्मीनान थोड़ा रखें, उसके बाद थोड़ा करें. सो साउथ ईस्ट एशिया इज गुड मार्केट फॉर फार्मास्यूटिकल. अफ्रीका इज वेरी गुड मार्केट. हम लोग क्या बोलते थे, फार्मास्यूटिकल करना है ना यार, यूएस कनाडा ही मस्त है मार्केट. नहीं, ये मार्केट भी अपने लिए ओपन है, साउथ ईस्ट एशिया एंड अफ्रीका. लेकिन कभी गौर नहीं किया या कभी वो थॉट प्रोसेस नहीं किया, क्योंकि वी वर ऑक्यूपाइड इन यूएस कनाडा, मजा है मजा है, तो ये सब में करो. अच्छा, इसमें फायदा क्या होगा? अफ्रीका में जब करोगे तो आपका मार्केट्स का रेगुलेशन कम हो जाएंगे. सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मार्केट. वन इज हाईली रेगुलेटेड, जहां पे यूएस, सिंगापुर, ये सब बड़े बड़े मार्केट्स जहां पे रेगुलेशंस आर वेरी टाइट. ये सर्टिफिकेट नहीं होगा ना अंकित, यू कैन नॉट एक्सपोर्ट, ये नहीं है ना तो यू आर नॉट अलाउड. वो सब झमेले बहुत है. लेकिन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में वी कॉल नॉन रेगुलेटेड मार्केट्स और सेमी रेगुलेटेड मार्केट्स, जहां पे कुछ को सर्टिफिकेट दे दिया, आपका काम हो गया. अनलाइक यूरोपियन यूनियन जहां पे ग्रीन सर्टिफिकेट चाहिए, इको फ्रेंडली चाहिए, एनवायरमेंट में 1000 टाइप के सर्टिफिकेट चाहिए, राइट. सो अफ्रीका में आसान है, तो वहां पे करो फार्मास्यूटिकल्स. इंजीनियरिंग गुड्स के लिए मिडिल ईस्ट इज, यूरोपियन यूनियन इज देयर अपार्ट फ्रॉम यूएस. टेक्सटाइल्स के लिए मिडिल ईस्ट है, साउथ ईस्ट एशिया इज देयर. ज्वेलरी के लिए ऑफ कोर्स हांगकांग, यूरोप तो है ही है. एग्रीकल्चर के लिए आपका अफ्रीका स्टिल गुड. वैसे ही मैरीन प्रोडक्ट्स के लिए साउथ ईस्ट एशिया इज गुड, जापान इज गुड. इलेक्ट्रिक मशीनरी के लिए अगेन साउथ ईस्ट एशिया. लेदर प्रोडक्ट्स के लिए मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया. सो लेदर हम लोग बोलते हैं कि नहीं, लेदर तो अपना यूरोप में ही जाएगा. नहीं जाएगा, साउथ ईस्ट एशिया में बेचो ना यार, मिडिल ईस्ट में बेचो ना, क्यों नहीं जाएगा? वो जाएगा. ये मैं नहीं कहता, ये वर्ल्ड ट्रेड डेटा कहता है. दिस इज नॉट माय कमिंग फ्रॉम एनीथिंग फ्रॉम माय डेटा. ओके, अभी की मार्केट्स, अभी ये यूएस हो गया. तो यूएस में कौन सा ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए मुझे अगर यूएस ही फोकस करना है, मेरा भाई, मेरा चाचा या फिर समवन इज देयर फ्रॉम माय फैमिली इन यूएस, मुझे अंकित यूएस ही करना है. चलो ये तो अभी 4-5 महीने में शॉर्ट टर्म में खत्म हो जाएगा, लॉन्ग टर्म के लिए तो वही. तो ड्रग फॉर्मुलेशंस, बायोलॉजिकल्स, पर्ल्स, प्रीशियस ज्वेलरी, स्टोन्स हो गया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गया, ये सब बढ़िया है. यूएई के लिए गोल्ड, प्रीशियस और सेम प्रोडक्ट रिपीट होंगे. नेदरलैंड्स के लिए कुछ लिखा है, चाइना के लिए कुछ लिखा है, सिंगापुर के लिए. यूके में आओगे तो टेलीकॉम इंस्ट्रूमेंट्स, इलेक्ट्रिक मशीनरी इक्विपमेंट हो गया. ऑस्ट्रेलिया में आओगे तो अगेन योर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, ड्रग फॉर्मुलेशंस, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स. सो हमने रीजन देखा, प्रोडक्ट्स देखा. अब प्रोडक्ट्स देख रहे हैं, रीजन देख रहे हैं, कंट्रीज देख रहे हैं, प्रोडक्ट देख रहे हैं, बारी बारी. अपॉर्चुनिटीज ऑफ कोर्स, न्यू एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन हमें करनी है, गवर्नमेंट इंसेंटिव्स है, एमएसएमई की. देयर आर 20 to 22 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमएसएमई स्कीम्स.
try to understand what all are meant for you, in what all schemes you are eligible, फंडिंग्स का है, फाइनेंस का है, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। वहाँ पे जाके थोड़ा समझे, ऑफिस में जाके हमसे मिले, एक थोड़ा स्वॉट एनालिसिस किया है, नॉट गोइंग इनटू दैट डिटेल। स्ट्रेंथ कौन सी इंडिया की, तो बोले वी हैव रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम एग्रीकल्चर टू मशीनरीज, ये हमारी स्ट्रेंथ है, हमारे लोग हमारी स्ट्रेंथ है, हमारा सर्विस सेक्टर हमारा स्ट्रेंथ है। वीकनेस कौन सा है, तो बोले अपने यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक्स वी आर नॉट दैट गुड, अभी भी थोड़ा वो सब बाकी है करना। अपॉर्चुनिटीज में एफटीएस हम लोग कर रहे हैं, लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए हैं। थ्रेट्स ऑफ कोर्स चाइना व्हेन इट कम्स टू मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स, एंड देन फॉर टेक्सटाइल्स में अगर जाएंगे तो वियतनाम जैसे प्रोडक्ट्स हमारे कंपटीशन में है। ये तो एक स्वॉट एनालिसिस जैसा बनाया था मैंने, and then we talk about something about geopolitics, and then we conclude the oil production of Kuwait, Iraq, Saudi has dropped by 10 million barrels per day। अभी ये जो ईरान, इजराइल, यूएस जो भी कर रहा है उसकी वजह से इम्पैक्ट आएगा। माय प्रैक्टिकल आंसर इज यस। बहुत इम्पैक्ट आएगा, प्रैक्टिकल आंसर इज नो। शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट आएगा, आंसर इज यस। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आएगा, आंसर इज नो। एज सिंपल एज इट इज। सो क्रूड ऑयल प्राइसेस जहां पे हम लोग बात करते थे यार, फरवरी में पिछले महीने की बात है तो $71 पे बिकता था, अभी ये $95 पे बिकता है। ये हो सकता है कि ये लंबा चला मई जून तक तो इट विल क्रॉस 150। ईरान तो बोलता है मैं 200 तक पहुंचाऊंगा इसको। खैर अभी वो उस पर ज्यादा डीप में नहीं आता है। वी विल हैव अ डिफरेंट ओपन फोरम नेक्स्ट मंथ कंसिडरिंग द गल्फ रीजन जियोपॉलिटिक्स, स्पेसिफिकली उस पर बात करेंगे एक घंटा। ईरान क्लोजर ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, अभी आप लोग सुन रहे हो ना, 50-20% ऑफ ग्लोबल ऑयल सप्लाईज वहां से हो रहा है। एंड देन इवन एलपीजी का वहां से, एलएनजी का वहां से हो रहा है। अभी 3 शिप्स निकाली है इंडिया की। तो दिस इज व्हाट ऑल इट इज अबाउट। नाउ लेट मी कम टू दी क्रोम एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कहां से मिला। आई जस्ट विजिट वन वेबसाइट एंड देन वी टेक सम फ्यू क्वेश्चंस। indiantradeportal.in। ये एफटीए का मुझे इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगा? कई लोगों ने मेरे सेशन अटेंड किए, दे आर वेल अवेयर, लेकिन जो लोग नए हैं, फॉर फर्स्ट टाइमर्स है, लेट अस स्पेंड एटलीस्ट 3 मिनट्स ऑन दिस। विच गवर्नमेंट वेबसाइट, नो लॉगिन रिक्वायर्ड। कोई भी मुझे अपना एचएसएम कोड बताए, 6 डिजिट 8 डिजिट का, आई विल फाइंड डेटा फॉर देम। या 4602। कौन सा प्रोडक्ट है दोस्त? ये क्यों नहीं हो रहा है? 40, हाँ कौन सा प्रोडक्ट है? ओके ठीक है, देखते हैं। आर्टिकल्स ऑफ कैरी, आर्टिकल्स ऑफ लुफा, ये ठीक है ना? आई एम प्रोडक्ट मास्टर, ठीक है। तो ठीक है, अभी यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, वी नीड टू क्लिक एक्सपोर्ट, हम लोग एक्सपोर्ट देखना चाहते हैं। एक्सपोर्ट पे क्लिक करें। अभी यहाँ पर मुझे बताना कि आपका एग्जैक्ट कौन सा है। लास्ट 11 है, क्या है? 90 है ना, ठीक है, उस पर क्लिक करते हैं। अभी ये हो गया। है क्या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है क्या ये? हाँ ओके ओके ओके, चलो ठीक है। सो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, क्विकली जो अपने 4 कंट्रीज की बात की ना, उसी पे थोड़ा फोकस करेंगे। हम लोग यूके क्लिक करेंगे, जिसका जिक्र हुआ था, यूएई पे बात करेंगे, यूएस पे बात करेंगे, मे बी आई टेक अप दिस जर्मनी टू अंडरस्टैंड यूरोपियन यूनियन प्रिसाइजली, एंड देन अदर कंट्रीज में यू हैव ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये 5 कंट्रीज आपको सिलेक्ट करने देंगे, और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक दिस नेक्स्ट बटन, एंड यू सिलेक्ट द फर्स्ट वन, द इमीडिएट HSN कोड जो रेलेवेंट है आपका, of all countries. You have, just click next. So here you find the import duties for this product in all 5 countries. सबसे पहले यहाँ पे जर्मनी दिख रहा है, मैं इसको थोड़ा zoom करता हूँ so that the back benches can view it. Readable? जर्मनी में it is 1.7%. ठीक है, अभी ये 0 है क्योंकि जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस है। यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रीटी होते ही 0, अभी भी 0 है तो कंटिन्यू टू 0 रहेगा। नीचे आओगे, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यहाँ पे 0 and 5 दिख रहा है आपको। यूएई में 5 कब था? 2022 में जब इंडिया और यूएई का जो एग्रीमेंट हुआ उसके पहले था। जैसे ही एग्रीमेंट हुआ ये 0 हो गया। 0.5 दिख रहा है आपको, सो यू टू टेक द लेसर वाला वैल्यू, सो 0 इज फॉर यूएई। यूनाइटेड किंगडम में क्या दिख रहा है? 0.00 दिख रहा है, 0 है क्योंकि एग्रीमेंट हो गया है। When it comes to US, अभी देखो 5% पहले था, अब ये 10% बंदे ने लगाया है, वो है। बीच में 50 हो गया था, अब ये 10 चल रहा है, तो वी डोंट नो यूएस का क्या है अभी। कब अपडेट हुआ था ये गवर्नमेंट की वेबसाइट? 2 मार्च 2026, यानी कि अभी 20 दिन 15 दिन पहले का। ऑस्ट्रेलिया में 0% दिख रहा है,
सो इफेक्टिवली अगर इनका प्रोडक्ट है, इनको अगर ये 5 कंट्रीज में जाना है, तो मेरे हिसाब से कोई इनपुट ड्यूटीज के कंटेक्स्ट में कोई चैलेंजेस है ही नहीं. एज सिंपल एज इट इज. करेक्ट. दिस इज हाउ यू अंडरस्टैंड द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट. और यहीं से मैंने सब चीजें निकाली हुई है. ऑल गवर्नमेंट वेबसाइट विच यू कैन फाइंड इट अक्रॉस. मेरे सेशंस आप लोग अटेंड कई लोग करते रहते हैं, उनको आइडिया है ही है. सो that's all from my side. So again, last but not the least, Utkrist Bharat, what we call an excellent India. And it's all our efforts and the exporters view and हम जो भी हैं जो अपने अपने लेवल पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं देश को, and we keep continuing those contribution in our own way. So thanks a lot. We can have a few questions one or two. Thank you. Can take 3 questions. Thank you so much. Very, very comprehensive as was said. Because today's topic itself is like this. It covers so many aspects. Export potential, trade agreements with the 3 countries or country blocks. And the last few side where is the waves of interrelation here. The potential, export potential of the countries, the products, the groups, fantastic. Nobody, sells such kind of information. These are the treasure, wealth of information which we are lucky to get. No. So, we can take 1 or 2 questions. He has been so time bound. He could have spoken for another half an hour, and we would have listened to him also. And we would have our MA timing series, right? So, 1 or 2 questions we can take. By the way, let me tell you, he's correcting. The feedback forms, please fill up and give it to him or the AMA office. AMA, as you know, always tries for excellence. And it is you who make AMA better, all of you. You can also mention topics of your choice कि अगले महीने कोई इस पे मुझे information चाहिए. You can mention in the feedback form. Yeah. Try to cover those topics as well later on. Yeah, there you go. Do you side you account and what it is Correct. Same way, can we get the information on the imports from other countries? Any products, any import, any export, any countries, you can find it. Okay. But HS code helps. HS code, HSM code, sir, short digit, digit, no. HS code helps. But available, information is available. There are many government websites freely available. जो मेरे सेशंस में कई लोग आते रहते हैं तो वो हम लोग दिखाते रहते हैं उनको. So those people would be aware of. I just have to ask one thing. This agreements with UK and whatever European Union, they are already operational or they are going to be operational? No, they're not yet operational. They were just signed. Allow those legislation of 27, but they are Unlike USA, which is undergoing some turbulence. technically, sir, it is concluded. Implementation comes after a couple. Yeah, that's it. But that is important because that's the stable part of it. So that is the key. They are going to be the key factors for India's in terms of business. If you have seen, as you have so nicely described, excellent trade agreements with the UK and the European Union. And it's a kind of win-win situation because both the countries or the group of countries are benefited. So ultimately, the world is going by the networking. What we can do best, they will like to take help of us. And what other can do best, why should we do good? We will take that. That is why it is working out well. If you see the India's product range in terms of export everything, it from high-tech products like pharmaceuticals, medical devices, semiconductors, to the lot of labor-oriented also. The garments and gems and jewelry, species, handicrafts. So that is where what he has highlighted is India's export potential lies. And that is why this cycle of trade agreement helps a lot. Fantastic. I must tell you. Fortunately, I have some background, all of you have background. It's a fantastic base of information. And later on also, you can contact him. They are about that is kind of thing. Yeah, please. that will speed up the export. As per its a commodities concern. So exact source like the already pitched like the detail but when it comes to business, right?
So, if I have to find out that what would be the exact cost or what would be the other charges that we implicate in my product apart from this taxes, and how can I do the pricing structure for any particular country, or how can I search the competition out there? So is there any source for that there are a lot of sources. What we do in our the sessions, the exim sessions, what the training programs we conduct, we show normally the price calculation in Excel sheet. So there are 27 components when your products goes from India to any of those countries. That includes majorly there are 3 components. One is your product cost, packing cost. Second is your transportation cost domestically. Then there is a custom clearance cost. There is a freight forwarding cost to that country. एंड देर आर सर्टिफिकेशन कॉस्ट. तो ये 4-5 मोटा मोटा कॉस्ट हम लोग कंसीडर करते हैं डिपेंडिंग ऑन, जैसे फर्नीचर है और फर्नीचर में देर आर नो सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड, देर आर नो रेगुलेशन, देर आर नो स्ट्रिक्ट. हैंडीक्राफ्ट पे नथिंग इज देयर. रेडीमेड गारमेंट टी शर्ट बेचना है, देर आर नो सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड और रेगुलेशन रिक्वायर्ड. सो बट या फार्मा तो वहां पे यूएस एफटीए इज मैंडेटरी. यूएस एफटीए इज वेरी कॉस्टली. अगर आपको घी प्रोडक्ट्स या फॉर एग्जांपल डेयरी प्रोडक्ट्स कॉन्फेक्शनरीज यूएई में बेचना है, हलाल सर्टिफिकेट इज मैंडेटरी. Halal will cost you around 75,000, 80,000 rupees. So depending on your product and depending on the market you cater. अब वही आपको प्रोडक्ट आपका हनी है या कॉन्फेक्शनरी प्रोडक्ट है, केनिया में बेचना है अमूल का, तो हलाल सर्टिफिकेट इज नॉट मैंडेटरी. मलेशिया में मैंडेटरी, इंडोनेशिया में मैंडेटरी. सो डिपेंडिंग ऑन प्रोडक्ट एंड योर मार्केट्स यू सिलेक्टेड, कॉस्ट विल वेरिएट. पर ये 4-5 कंपोनेंट मोटा मोटा आता है. या कोई ना સિવાય કે નાના કિડ્સ માટે, કારણ કે their skins are very sensitive. Stringent norms से आता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए. So one, nutraceutical, pharmaceutical के लिए. Second, third is with the cosmetics, very dangerous. And fourth is your toys for US and European Union. કારણ કે આપણા છોકરા પ્લાસ્ટિકનું કાંઈ એ લોકો they are very sensitive કે એ નહીં કરશે. तो अगर ये प्रोडक्ट्स के साथ डील कर रहे हो, the sensitivity is very high. अगर इसके अलावा हैंडीक्राफ्ट हो गया, फर्नीचर हो गया, नॉर्मल आपका स्टील प्रोडक्ट्स बार होगा, तो ज्यादा दिक्कत है वहां पे नहीं है. एएसटीएम स्टैंडर्ड लगा दिया, आपका स्टील बार बिलेट वो सब बिक जाए. नो, so that is not an issue. जी, there are 11 ways, normally 11 sources to find buyers. 11 में से 5 आर फ्री ऑफ कॉस्ट, 6 आर जहां पे आपको इन्वेस्टमेंट पैसा लगाएंगे. हम लोग यहाँ पे सेशन में वो 11 के 11 समझाते. So you can attend any of our sessions. The name of the topic is export strategy, finding buyers, foreign buyers and market selection. ऐसा टॉपिक करके आता है. 3 घंटे का 6 घंटे का प्रोग्राम्स होता है. तो में आप आ जाओ, आपको पूरा डिटेलिंग समझा देंगे. बट मोटा मोटा 11 वेज. या लास्ट क्वेश्चन सर, मेरा जो प्रोडक्ट है वो इको फ्रेंडली और डिस्पोजेबल प्रोडक्ट है. हाँ, डिस्पोजेबल. हाँ जी, तो वो है, वो कंपोस्टेबल भी आइटम है. हाँ. तो उसके अंदर पेपर कप वगैरह है, पेपर स्टोव वगैरह है. तो वहाँ पे चाइना के जो प्राइस है वो वेरी कॉम्पिटिटिव है. करेक्ट. तो उसमें कैसे कर सकते हैं ज़्यादातर? सी, वो कंट्री सिलेक्ट करे कि जहाँ पे चाइना आपको सीधा नहीं लड़ेगा. नंबर 1. नंबर 2, अगर चाइना से कंपटीशन कम है तो आप क्या, हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, आप क्या करोगे? प्राइस रिड्यूस करोगे. हाँ, दैट इज द वर्स्ट स्ट्रेटेजी यू कैन हैव. क्योंकि प्राइसिंग में उसके साथ तुम खेल नहीं सकते. वो गेम में तुम जीत ही नहीं सकते. तुम $5 कम करोगे, भाई वो 10 करेगा. तुम 15 करो, 20 करेगा. वो 20 कम करके भी कमाएगा. यू विल मेक लॉस. So whenever China is there directly facing competition from China, never get into price wala case. Always go for rapport building, relationship building, value addition, branding. वो सब strategy पे चलेगा. Direct मत भिड़ो उनसे. ओके. वैल्यू एडिशन में चले जाओ, ब्रांडिंग में चले जाओ. वहाँ पे आपका जॉइंट वेंचर करा दो, पार्टनरशिप, कोई कंपनी लोकली ट्राई टू फाइंड समवन ओवर देयर. ओके. These are few ways. थैंक यू. right. Thank you so much once again, and thank you all for asking the very relevant question. Once again, let's clap for Apigai, and we are sure we will enlighten to keep again. There are so many things to know in the terms of business, and he is the best person to guide us in that. Thank you so much, and thank you all of you. Please keep on coming to AMA, right? Okay.